नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ करते हैं जो बर वक्त हमारे लिए खुराक मुहैया करता है। जब भी हम खुदावंद की सिताइश करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, तो यकीनन खुदा हमारे साथ होता है, हमारे दरमियान होता है। फिर जब हम कलाम सुनने के लिए तैयार होते हैं तो खुदा बोलता है। आमीन। खुदा अपने कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों को तब्दील करता है। उसके कलाम के लिए जो सारी चीजों से ज्यादा कीमती है, जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। हम एक कहानी से सीख रहे हैं जो अमाल की किताब के 10वें बाब में है। एक शख्स है जिसका नाम कर्नेलियस है, और खुदा के गहरे मुकाशफा इससे सीख सकते हैं। उस शख्स के बारे में बाइबल बताती है कि खुदा अपना आसमान खोलता है, खुदा अपने फरिश्ता को भेजता है, खुदा अपना कलाम उस पर खोलता है और उसके लिए निजात के दरवाजे खोलता है। क्यों? उस शख्स की चंद खूबियों पर हम गौर कर रहे हैं। आपको याद होगा कई संडे हम इसी बात को सीख रहे हैं। उसके बारे में क्या पढ़ते हैं आप? खुदा से डरता, दीनदार जी, और बदी से दूर। तरतीब से कोई बता सकता है? तरतीब से बताइए। वो कैसरिया में कर्नेलियस नाम एक शख्स था। एक शख्स था, कर्नेलियस उसका नाम था। वो उस पलटन का सूबेदार था वो पलटन का सूबेदार था जो अतालियाती कहलाता। जो अतालियानी कहलाती है। वो दयानतदार था, वो दीनदार था, अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। वो दीनदार था, अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था, और यहूदियों को बहुत खराज देता, और यहूदियों को बहुत खरात देता था, और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। और हर वक्त हर टाइम खुदा से दुआ करता था। आमीन। आमीन। खुदा का बंदा जिसके लिए खुदा ने आसमान को खोला, अपने फरिश्ते को जमीन पर भेजा, कलाम नाज़िल हुआ, खुदा उसके लिए क्यों इतना मेहरबान हुआ? कलाम में हमने सीखा है उसकी मेहरबानी की वजह क्या। खुदा आज भी ऐसे लोगों पर मेहरबान हो सकता है? जी, हो सकता है। 4 खूबियां: वो दीनदार था, अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था, खरायत बांटने वाला था, और हर वक्त दुआ करने वाला था। ये 4 बड़ी खूबियां हैं जो उस शख्स के अंदर पाई जाती थी। लेकिन एक ही पर हम गौर करेंगे। खुदा से डरता था। यह खुदा से डरने का मुकाशफा जो उसके पास था, अब बहुत सारे लोगों के पास यह मुकाशफा नहीं है। खुदा से डरने का मुकाशफा
آج بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا تھا، گھرانے سمیت ڈرتا تھا۔ جب اس بات پر میں غور کرتا ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ خود بھی ڈرتا تھا اور اس کا گھرانہ بھی ڈرتا تھا، اور گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا۔ اب سنیے خدا سے ڈرنے کا مکاشفہ۔ جب میں اس کو بیان کرتا ہوں مجھے بڑی خوشی ملتی ہے کہ میں ایک خاص بات قوم تک پہنچا رہا ہوں، ایک خاص بھید کھول رہا ہوں، اور جو میں اس کو کھولتا ہوں خدا میرے پاس اور زیادہ مکاشفات بھیجتا جاتا ہے، خدا مجھے اور کلام دیتا جا رہا ہے۔ آج بہت سارے لوگ خوف زدہ ہیں، بہت سارے لوگ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اور اس ڈر اور اس خوف کی وجہ سے لوگ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، بیمار ہوتے جا رہے ہیں۔ اور بائبل کا مکاشفہ یہ بتاتا ہے، یسوع مسیح نے بھی یہ کہا آخری زمانے کی، جب وہ باتیں کر رہا تھا، آخری دور کی نبوت کر رہا تھا یسوع مسیح، آنے والے دور کے بارے میں بتا رہا تھا، تو اس نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت ڈر خوف لوگوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ ہوگا، لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، لوگ سہمے ہوئے ہوں گے، لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، لیکن سارے لوگ نہیں، خدا کے لوگوں کو نکال کے۔ خدا کے لوگ اس وقت خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ کلام میں لکھا ہے، لوکا کی انجیل کے 21ویں باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا، جب انہوں نے پوچھا کہ اس وقت کا نشان کیا ہے، کب یہ وقت ہونے والا ہے، تو تب اس نے یہ کہا 21ویں باب کی 9ویں آیت میں، انہوں نے اس سے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم 21ویں باب کی 9ویں آیت، لڑائیوں اور فسادوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا۔ ہاں، اپنے شاگردوں سے یہ کہا جب لڑائیاں ہوتی سنو گے یا ان کی افواہیں سنو گے، جب لڑائیوں اور افواہوں کی بھرمار ہوگی تو گھبرا نہ جانا، ڈر نہ جانا۔ اور لوگوں کے بارے میں لکھا ہے، یہ تو شاگردوں کے بارے میں ہے، لوگوں کے بارے میں لکھا ہے 25ویں آیت میں، اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی، قوموں کو، ایمانداروں کو نہیں، مسیحیوں کو نہیں، زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی، قومیں گھبرا جائیں گی، قومیں خوف زدہ ہوں گی۔ کلام میں لکھا ہے، اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے، اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر
सर ऊपर उठाना, इसलिए तुम्हारी मखलसी नजदीक है। तुम्हारी मखलसी नजदीक है, लोगों की नहीं। लोगों की मौत नजदीक है, तुम्हारी मखलसी नजदीक है। घबरा ना जाना। लोग खौफजदा हैं। किससे? बीमारियों से डरे हुए हैं, वबाएं आती हैं, खौफजदा हैं। लड़ाइयों और अफवाहों से खौफजदा हैं, बदरूहों से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, यहां तक इंसानों से भी डरते हैं। यीशु मसीह ने बताया किससे डरना है, किससे नहीं डरना। अब दो किस्म के डर यहां पर मैं बयान करना चाहूंगा। एक तो वो डर जिससे कौमें डरती हैं, जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं, और दूसरा डर अपने खुदा का डर। सुनिए, जो खुदा का डर, खुदा का खौफ मानते हैं, वो बाकी चीजों का खौफ नहीं मानते, वो बाकी चीजों से नहीं डरते। यीशु मसीह ने साफ बताया किससे डरना है, किससे नहीं डरना। लूका के 12वें बाब में, लूका की इंजील उसका 12वां बाब, चौथी आयत से पढ़िए। अपने दोस्तों को क्या बता रहे हैं, किन से डरना है, किन से नहीं डरना। मगर तुम दोस्तों से मैं कहता हूं कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते। सुनिए, यीशु मसीह ने कहा, मगर तुम दोस्तों से कहता हूं, ईमानदारों से कहता हूं, अपने शागिर्दों से कहता हूं कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं। ये बदन को कत्ल कौन करते हैं? इंसान करते हैं। उनसे ना डरो, और उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। इंसान आपको मार सकते हैं, इंसान आपको कत्ल कर सकते हैं, लेकिन आपकी रूह को जहन्नम में नहीं डाल सकते। नबियों को कत्ल किया, रसूलों को, बादशाहों को, लेकिन जो खुदा के लोग थे उनको कत्ल नहीं कर सके। एक शख्स बड़ा अच्छा किरदार है, जब उसे कत्ल करने लगे, लोग संसार कर रहे थे, लोग उसे मार रहे थे। आपको याद आया उसका नाम? मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे, और उसने क्या कहा? इनको माफ कर दे, और हां, इनको माफ कर दे। उनके लिए माफी चाहिए, जिस तरह से यीशु मसीह ने सलीब पर माफी चाहिए, उसने भी उनके लिए माफी चाहिए। ऐ बाप, इनको माफ कर दे। आगे लिखा है, बस ये स्तिफनस को संसार करते रहे, और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा कि ऐ खुदावंद, ये गुनाह इनके जुम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया। आमीन। मेरी रूह को कबूल कर। ये जिस्म को तो कत्ल कर सकते हैं, रूह खुदा के हाथ में है। यीशु मसीह ने कहा, उनसे ना डरो जो तुम्हारे बदन को कत्ल कर सकते हैं। 12वें बाब में आपने पढ़ा है 4थी आयत से कि उसने कहा अपने दोस्तों को कि उनसे ना डरो
जो बदन को कत्ल कर सकते हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते। आगे लिखा है, मैं तुम्हें जताता हूं कि किससे डरना चाहिए? तुम्हें किससे डरना चाहिए? उससे डरो जिसको इख्तियार है। उससे डरो जिसके पास पावर है, जिसके पास इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नम में डाले। वो कत्ल के बाद जहन्नम में भी डाल सकते हैं, बस उसी से ही डरो। वो कौन है जिससे डरना है? वो कौन है? वो खुदा है जो बचा भी सकता है, हलाक भी कर सकता है। बस उसी से डरो, उसी से और किसी से नहीं। वो कौन है जिससे डरने का कहा गया है? वो खुदा है। अगर आप इसको और जानना चाहते हैं, याकूब के खत के 4 बाब की 12वीं आयत में पढ़ सकते हैं। कौन है जिससे डरना है? जो बदन को जहन्नम में भी डाल सकते हैं। उनसे ना डरो जो सिर्फ और सिर्फ बदन को कत्ल करते हैं। आदमियों से भी ना डरो। जो खुदा से डरते हैं उनको किसी चीज का खौफ नहीं है। वो किसी से नहीं डरते। जो खुदा से डरते हैं, खुदा से डरने का मुकाशफा सीखिए। ये जरूर सीखिए कि खुदा से डरना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। लोग खुदा से डरने को भूल चुके हैं। दूसरी चीजों के खौफ के अंदर दबाए जा रहे हैं। खौफ की वजह से बीमारियां, बदरूहें, खौफ की वजह से लोग ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल की बीमारियों के नीचे दबे जा रहे हैं, खौफ की वजह से। और लोग सहमे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकलते। लोग घबराए हुए हैं। लोग महसूस करते हैं कि गली से बाहर निकलेंगे तो पता नहीं क्या होगा, मौत है बाहर। एक बात सुनिए, इमसाल किताब में इमसाल इमसाल की किताब में खुदा के बंदा ने बहुत सारी बातें सिखाई, दनाई की, हिकमत की बातें। और उसने इस किताब को इस तरह से शुरू किया कि वो अपने बेटे के लिए हिकमत और दनाई की बातें करता है और उसको सिखाता है। जब उसने शुरू किया और उसने सोचा कि वो अपने बेटे को दनाई की बातें सिखाए, हिकमत की बातें सिखाए। जब कोई चीज सिखाता है तो पहले उसकी बुनियादें दुरुस्त करता है। अगर कोई इंग्लिश सीखता है तो पहले एबीसी सिखाते हैं, एबीसी सिखाते हैं ना, अल्फाबेटा सिखाते हैं ना। अगर कोई उर्दू सीखता है अल्फाबेट सिखाते हैं, ऐसे ही है ना। उसने कहा दनाई की, हिकमत की अल्फाबेटा क्या है, कहां से शुरू होता है? कलाम में लिखा है खुदा का खौफ ही दनाई का शुरू है। यही है, खुदा का खौफ ही इल्म का शुरू है। दनाई सीखनी है, हिकमत सीखनी है, नॉलेज लेना है, तो इसका जो बुनियादी नुक्ता है जहां से ये शुरू होता है वो खुदा का खौफ है। फिर उसके 29वें बाब में 25वीं आयत, इमसाल के 29वें बाब की 25वीं आयत, इंसान का डर फंदा है, इंसान का डर फंदा है, लेकिन जो खुदावंद पर तवक्कल करता है महफूज रहेगा। जो खुदावंद पर तवक्कल करता है महफूज रहेगा। इंसान का डर फंदा है,
लेकिन जो खुदावन पर तवक्कल करता है महफूज रहता है। इंसान का डर, इंसान का खौफ फंदा है। फंदा क्या है? मौत, हलाकत। इंसान का डर मौत है, हलाकत है। लेकिन जो कोई खुदावंद पर तवक्कल करता है महफूज रहेगा, महफूज रहेगा। किससे महफूज रहेगा? उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। वो डरने का नहीं, क्योंकि वो खुदावंद पर तवक्कल करता है, खुदावंद पर यकीन करता है। जो खुदावंद पर यकीन करता है वो यकीन से कहता है, अंदर से, दिल से कहता है। उसके अंदर की आवाज है, उसके अंदर से ये बात निकलती है, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। वो तवक्कल करता है कि वो मेरे साथ है, इसलिए मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। और बड़ी बला से नहीं डरने वाला, वो कहता है इसलिए कुछ डर नहीं, खा जमीन उल्ट जाए और पहाड़ समुद्र की तह में चले जाएं तो भी नहीं डरता। जमीन भी उल्ट जाए मुझे डर नहीं लगता। खौफ नहीं है, दलेरी है, पावर है। क्यों? क्योंकि वो खुदा पर तवक्कल करता है, उसे यकीन है कि तू मेरे साथ है। वो इस बात पर यकीन करता है, उसका भरोसा है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, इसलिए मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, बल्कि मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। इंसान का डर फंदा है, लेकिन जो खुदावंद पर तवक्कल करता है वो महफूज है। कितना महफूज है? आपने ज़बूर में पढ़ा, 34वें ज़बूर की 7वीं आयत में, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता जो वो खैमाजन होता है, तंबू लगाता है। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है, उनको बचाता है। खौफ ज़दा नहीं होते, क्योंकि खुदा का खैमा, खुदा के फरिश्ते का खैमा उन पर लग जाता है। किन पर लगते हैं? जो उस पर तवक्कल करते हैं, जो उससे डरते हैं, उनकी बात हो रही है। खुदा का फरिश्ता उन पर खैमाजन होता है और उनको बचाता है। अगर आप इसी को और सीखने के लिए कि खुदा का डर, खुदा का खौफ कितना जरूरी है, कितना जरूरी है, खुदा से डरना कितना जरूरी है। खुदा यकीनन उन लोगों से प्यार करता है जो उससे डरते हैं, जो उससे, उसके हुक्मों को मानते हैं, उसके कलाम को मानते हैं। उनकी बाबत इमसाल के 18वें बाब में 10वीं आयत पढ़िए। 18वें बाब की 10वीं आयत पढ़िए। खुदा का नाम मुहकम बुर्ज है, खुदा का नाम मोहकम बुर्ज है। ये मोहकम क्या होता है? हुक्म देने वाला, क्यों जी? और कोई? हाकम। मोहकम होता है मजबूत, पायदार, कभी ना टूटने वाला, मजबूत, पायदार। खुदा का मोहकम बुर्ज है, मजबूत किला है। खुदा का किला जो बादशाह पुराने दौर में भी, आज भी बादशाह अपने लिए बुर्ज बनाते थे। आप शहरों में जाते हैं, बादशाहों के, पुराने बादशाहों के
आप कले देखते हैं। देखे कभी आपने शाही किला देखा है? किला भी उसको पंजाबी में कहते हैं, लेकिन कला लफ्ज कला होता है पेशावर में भी। और उसकी दीवारों के ऊपर बुर्ज बने होते हैं जहां पर वो, और बहुत ऊंची जगह पर वो बनाते हैं, जमीन से बहुत ऊंचा बनाते हैं। अब सुनिए, गौर से सुनिए, फिर क्या होता है। बादशाह जंग करते हैं, जब उनको मुश्किल लगती है तो वे भागकर अपने किले में चले जाते हैं। यहां पर लिखा है खुदावंद का नाम मोहकम बुर्ज है। इसका मानी है कि खुदा का नाम जो है ये एक मजबूत किला है। अब सुनिए आगे क्या लिखा है। सादक उसमें भाग जाता है सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। और फिर सुकून में, अमन में रहता है। उनके पास खुदा का नाम है, वो खुदा से डरते हैं, उनके पास ये सहूलत मौजूद है। जब कोई मसला होता है, जब खौफ होता है, वो खुदावंद के नाम में छुप जाते हैं, क्योंकि खुदावंद का नाम मोहकम बुर्ज है। मोहकम बुर्ज है, खुदा का नाम मोहकम बुर्ज है, पायदार बुर्ज है। जब सादकों को मसला होता है तो वो भाग जाता है और अपने खुदा में छुप जाता है, महफूज हो जाता है, अमन में रहता है, महफूज रहता है, क्योंकि वो खुदा से डरता है। जो खुदा से डरते हैं वो महफूज हैं, वो हिफाजत में रहते हैं। खुदा का कलाम हमें इस तरह से सिखाता है। खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं कि खुदा से डरने वाले लोग हैं, महफूज हैं, वो दूसरी चीजों से नहीं डरते, नहीं घबराते इंसानों से, ना बदरूहों से, ना जादू से, ना उनको कोई वबा आने का या लड़ाइयां या अफवाह सुनने से कोई खौफ आता है, बल्कि वो हमेशा खुदावंद में मुतमिन रहते हैं, खुदा के अंदर महफूज रहते हैं, क्योंकि खुदा का नाम मोहकम बुर्ज है। खुदा का नाम मोहकम बुर्ज है, उसमें महफूज हो जाते हैं। खुदा उनको संभालता है, खुदा उनको फतह देता है, खुदा उनकी निगहबानी करता है, क्योंकि वो सिर्फ खुदा से डरते हैं, बाकी चीजों से नहीं डरते। यीशु मसीह ने भी यही कहा लूका की इंजील में, मैं तुम्हें बताता हूं किससे डरना है, किससे नहीं डरना। इसका मतलब है कुछ चीजों से डरना है, कुछ से नहीं डरना। और जिससे डरना है वो हमारा खुदा है, और जिनसे नहीं डरना वो बाकी सारी चीजें हैं जिनसे हमें खौफजदा नहीं होना, क्योंकि खुदा के लोग सादिक अपने खुदा के नाम से महफूज रहते हैं। वो घबराते नहीं है, डरते नहीं है। इसलिए ये बड़ी खूबसूरत बात है जो कुरनेलियस के बारे में हमने पढ़ी है कि वो खुदा से डरता था। खुदा से डरने के बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे मैसेज आप सुन चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको और आगे बढ़ाएं, क्योंकि मैं इसको क्लोज करना भी चाह रहा था, लेकिन खुदा और ज़्यादा खोलता जा रहा है मुझ पे इस भेद को। तो मैं चाहता हूँ ये सारा भेद आप तक मैं पहुँचा दूँ, ताकि कोई शख्स गाफिल ना हो कि खुदा का खौफ मानना चाहिए या नहीं। और दूसरी चीज़ों का डर, खौफ उतर जाता है जब हम खुदा के खौफ को समझ जाते हैं। खुदा का डर, खौफ मानना अपने अंदर शुरू कर दें, क्योंकि इसके अंदर पावर है, इसके अंदर ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है। यशायाह की किताब में 8वें बाब में, यशायाह 8वां बाब 12वीं और 13वीं आयत, यशायाह की किताब के 8वें बाब में तुम उस सब के को जिसे ये लोग साजिश कहते हैं, साजिश ना कहो। लोग कहते हैं लेकिन तुम ना कहो, लोगों को कहने दो। आगे, और जिससे वो डरते हैं तुम ना डरो।
जिससे वो डरते हैं, जिससे वो खौफजदा हैं, लोग जिससे खौफजदा हैं, तुम उससे खौफजदा ना हो और ना घबराओ। और ना घबराओ। तुम रब्बुल फौज ही को मुकद्दस जानो उसी को मुकद्दस जानो और उसी से डरो बस उसी से ही डरो और उसी से खाइफ रहो, और बस उसी का ही खौफ मानो। और वो एक मुकद्दस होगा, हाँ, एक बस मकदस होगा। एक से ही डरो, उसी से ही डरो, और चीजों से ना डरो। लोग डरते हैं, उनको डरने दो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो ईमानदार भी कहलाते हैं तो भी कई चीजों से खौफजदा हैं। उनको डर है कि बदरूहें ना आए, उनको डर है कि कोई जादू ना कर दे, और वबाओं से भी डरते हैं, नजर ना लग जाए इससे भी डरते हैं। लेकिन अगर कोई खुदावंद पर तवक्कल करता है, खुदावंद पर भरोसा करता है, तो उसे किसी चीज का खौफ ना हो, किसी चीज का खौफ ना हो। क्यों? क्योंकि एक से जो डरता है तो बाकी चीजों से डरने की क्या जरूरत है? बस खुदा से डरो। उससे तो पहाड़ भी डरते हैं, समुंदर भी उसकी झिड़की से भागता है। उसके सामने तो बाइबल ये बताती है शैतान भी थरथराता और कांपता है। वही ये फरमाता है, मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा जो मेरे कलाम से कांप जाता है। वही उसको अच्छा लगता है, वही उसको अच्छा लगता है जो उसके कलाम से कांप जाता है, डर जाता है। खुदावंद से डरो है उसके मुकद्दसो, खुदावंद से बस डरो, बाकी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। खुदा अपना जलाल उन पर जाहिर करता है जो खुदा दलेरी बख्शता है। पालूस भी कहता है हमें दलेरी का रूह मिला, डरने का नहीं। हमने यीशु मसीह को कबूल किया, हमें खौफ का रूह नहीं मिला, हमें दलेरी का रूह मिला हुआ है। हम दलेर होते हैं तब होते हैं जब खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, खुदा पर यकीन करते हैं, खुदा पर भरोसा करते हैं, तभी वो महफूज रहते हैं, तभी वो। एक मुझे याद आती है बात, एक जोड़ा था, मैं उसके पास विजिट के लिए कभी गया, बहुत दूर की बात है ये। वहां पर मैंने उनमें खिदमत की, बेलाद थे, उनको खुदावंद ने बेटा दिया, उन्होंने शुक्रगुजारी के लिए बुलाया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि एक और जोड़ा है यहां पर, वो भी बे औलाद है, उनके लिए प्रेयर की जाए। उनके लिए भी दुआ की। अगले साल उनको भी खुदा ने बेटी दी। बड़े खुश थे, मुझे कॉलें करते, बार बार बताते खुदा ने बरकत दी है, हम बड़े खुश हैं, खुदा ने बेटी दे दी है। बड़ी खुशियां की उन्होंने, और साथ मुझे बताते रहे कि आपको बुलाएंगे, आप आएंगे शुक्रगुजारी के लिए। और साथ साथ एक बुरी खबर भी देते रहे कि वो बेटी पैदा हुई थी तब ठीक थी, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कमजोर होती जा रही है, बिल्कुल वो सूख ही गई है, तो आप जल्दी पहुंचे, दुआ करें उसके लिए। खैर मैं वहां पर पहुंचा, दुआ की के लिए पहुंचा कि दुआ करूं। जब मैंने देखा तो वो बेटी वाकई बड़ी कमजोर थी, हड्डियां हड्डियां। जब बैठे थोड़ा गौर किया तो मुझे कई चीजें उनके घर में मिली। बाहर उन्होंने को पत्ते दरख्तों के बांधे हुए थे, एक बैंगन को उन्होंने बांधा हुआ था, सूखा हुआ था। अपने चारपाई को ताला उन्होंने लगाया हुआ था। मैंने पूछा ये क्या है, ये क्या चीजें हैं? उन्होंने कहा कि इसलिए कि कोई इस पे अटैक ना करे। जिस तरह से वो पत्ते और वो बैंगन सूख रहे थे, इसी तरह से उनकी बेटी भी सूखती जा रही थी।
फिर वो सारी चीज़ें मैंने खोली और मैंने कहा कि आप खुदा पर यकीन नहीं करते, ये चीज़ें आपको महफूज करती हैं, ये पत्ते जो अपने आप को महफूज नहीं कर सके, ये सब्जियां जो अपने आप को महफूज नहीं कर सकती, क्या ये आपको महफूज कर सकती हैं? फिर जो आपकी हिफाजत करता है वो खुदा है जिसने आपको बेऔलादी से औलाद वाला कर दिया है, क्या आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते? फिर उन्होंने सारी चीजें खत्म की और बेटी फिर से सेहतमंद होना शुरू हो गई। आमीन। लोग खुदा से नहीं डरते, बहुत सारी चीजों के खौफ में जिंदगी गुजारते हैं और नाकाम हैं, घाट में जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। लेकिन हमें एक ही बात सीखनी है सारे मैसेज में कि हमें बाकी चीजों का खौफ उतार के सिर्फ एक ही खौफ मान लेना है और वो खुदा का खौफ है। यीशु मसीह ने कहा उससे ही डरो, उससे डरो, उनसे भी ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं, वो फंदा हैं। इंसान का डर फंदा है, मौत है, हलाकत है, लेकिन खुदा उन पर तवक्कल करने वाले महफूज रहते हैं, हमेशा महफूज रहते हैं। खुदा उन पर अपना आसमान खोल देता है। किन पर? जो खुदावन से डरते हैं। 51 बाब इसी का, यसाया का चैप्टर 51, इसकी 12वीं 13वीं आयत पढ़िए। तुमको तसल्ली देने वाला मैं ही हूं। खुदा कहता है, खुदा का कलाम ये बताता है, खुदा खुद कहता है तसल्ली देने वाला कोई भी नहीं है। बातें बड़ी करते हैं सारे, तुमको तसल्ली देने वाला मैं ही हूं। कौन है जो फानी इंसान से, फिर तू फानी इंसान से क्यों डरता है? और आदम जात से जो घास की मानंद हो आदम जाएगा, जात से जो घास की मानद है, उससे क्यों खौफजदा है? डरता है। उससे क्यों डरता है? और खुदावंद अपने खालिक को भूल गया है, अपने खुदा को भूल गया है, जिसने आसमान को ताना जिसने आसमान को ताना है और जमीन की बुनियाद डाली, और जिसने जमीन की बुनियाद डाली है। और तू हर वक्त जालिम के जोशो खरोश से, उसके जोशो खरोश से क्यों डरता है? कि गोया वो हलाक करने को तैयार है, और डरता समझता है कि वो हलाक कर देगा, उससे डरता है। लेकिन जो आसमान और जमीन का मालिक है, उससे क्यों नहीं डरता? तुम्हें कौन तसल्ली देगा? तुम्हें कौन बचाएगा? पर तो मैं ही हूं। घास से डरता है, हवा से डरता है, इंसानों से डरता है, बदरूहों से डरता है, बीमारियों से डरता है, जंगों से डरता है। उससे क्यों नहीं डरता जिसने आसमान और जमीन को ताना है? वो तेरे सारे खौफ उतर जाएंगे, वो तेरे सारे रोग मिटा सकते हैं। तसल्ली देने वाला खुदा है, बस उससे डरो और बाकी सारी चीजों से महफूज रहोगे। खुदावंद आपको बरकत दे। इस मजमून को मैं फिर आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि खुदावंद अभी और मुकाशफात मुझे इसके हवाले से दे रहा है। हम